Where are you from? I am from Agra. You are from Agra. Agra. Okay. What do you do? What's your job? Not I am a student. What are you studying? What course are you pursuing? I am completed my graduate. Hmm? My graduate completed. Graduation completed. Yes. Okay. So, are you working somewhere? No. No. So, why do you want to improve your English? But my English is not improved. I cannot speak fluently. आपका माइक थोड़ा दूर रखिए आवाज आपके मुंह से Okay. हाँ हाँ स्पीक I cannot speak fluently English. इट्स This is ओके बट this is big व्हाट इज द problem. But I know all sentence, but I cannot speak English fluently, and I remember vocabs. I am speaking very fastly. I can understand any person. फास्टली व्हाट डू यू मीन But I can speak English fastly in front of not understand my English. but what means what is the reason actually why you want to improve is there I any want to particular purpose for job purpose. hmm? For job purpose. on job purpose you want to improve Yes. so you are from Agra itself or you are from somewhere else Somewhere else. where Kubirpur. hmm? Kubirpur. I couldn't hear what Kubirpur. where is it in UP Yes. nearby Nearby you. Agra. okay is it a village No, town. town Agra is a city. I know Agra is a city. So you have why have you come to Agra? But I joined Agra, but I cannot not learn fluently speak in Agra. No, why means you came to Agra for study. Yes. Okay. Hmm. So how did you come to know about me? मेरे बारे में कैसे पता चला था? On the Facebook. हाँ? On the Facebook. Under? I saw on the Facebook your advertise. Okay. So did you join any group? नहीं. कोई WhatsApp group join किया था मेरा? Yes, yes. Which group? You, I name is not learned here. It's not. What was the group? I am telling now. Hmm? I am telling now 1 minute. Okay. Practice and be fluent English. Hmm? Practice and be fluent English. Okay. Okay. So you are in that group. Mm. Oh. So when did you join that group? I joined the group maximum good 10 days ago. Okay, you are trying to speak. That's good. And do you want to ask me anything before we No, go to trial class? yes, I saw your group. You are learning English for 15 days. आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही या तो जस्ट कीप इट
Don't use that actually. You are using mobile. Hello. Yes, अब आ रही है? that's fine. Okay. Why are you using headphone and all? Okay. Hmm. So, do you want to ask me anything? Any question before we go to have a trial class? Yes, I saw your groups. You are learning English for 15 days. Hmm. Okay. So, do you want to ask me any question before you go to learn? Yes. You मुझसे can. नहीं, मुझसे कुछ पूछना नहीं है आपको। आप बताइए क्या पढ़ाना है? वो तो मैं बताऊंगा। You don't want to ask me any question before we go to trial class? Not. Not now. कुछ पूछना नहीं है आपको? Not now. अभी. After last coaching. Hmm. Not. Not now. Mm, Hmm. Feeling hot yes. very much. Why? Is there no fan or no cooler? What is it? Light is not available. Hmm. Electricity has been cut off. Yes. अब क्या बोलते हैं इसको अपन इंग्लिश में? इलेक्ट्रिसिटी आ गई अभी तो बिजली शायद। आ गई. Electricity came. इलेक्ट्रिसिटी हैज बीन कट ऑफ। जब आ गई तो क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिसिटी हैज बीन स्टोर्ड। डू यू सी चैट बॉक्स? ये शोर कैसा आ रहा है पीछे से? क्या चल रहा है पीछे? मशीन चल रही कोई क्या? नहीं, फैन ऑन है. हाँ? कूलर चल रहा है. फैन कूलर की आवाज रुक रुक के आती है क्या? रुक के आ रही. फिर रुक जाती है, शू, फिर रुक जाती है। ये क्या आवाज है? नो. हम्म। इलेक्ट्रिसिटी हैज बीन रिस्टोर्ड। क्लियर हुआ? यस. Electricity has been cut off. So, do you have knowledge of grammar and all? व्हाट? आपको ग्रामर वगैरह की नॉलेज है यस. पूरी? पूरी. अच्छा, अगर मैं आपसे एक सेंटेंस हिंदी में पूछूं, यहाँ पर कार की मरम्मत या कारों की मरम्मत की जाती है, इस सेंटेंस को कैसे बनाओगे? क्या? यहाँ पर कारों की मरम्मत की जाती है। देयर इज रिपेयर्ड कार. देयर इज रिपेयर्ड कार. There is repaired car. ऐसे नहीं बनेगा। Cars are repaired. देयर आर रिपेयर्ड कार. हाँ? देयर आर रिपेयर्ड कार हियर.
ये बनेगा। Can you see chat box? Yes, yes. चलिए तो क्या ग्रामर भी आपकी थोड़ी सीखनी हो पड़ेगी आपको। अब आपने वो देखा 15 डेज वाला ग्रुप, but you will take Yes. but you will take 30 days to learn. Getting my point? आपको 30 दिन लगेंगे, 15 दिन में नहीं सीख पाओगे। 20 days. ठीक है, 20 days. 30 Okay. आपको 30 डेज लगेंगे सीखने में। ठीक है, Okay. चलिए तो अपन अपनी ट्रायल क्लास शुरू कर रहे हैं। यार ये शोर आ रहा है पीछे से, आपके डिस्टर्ब कर रहा है। टीवी का ऑन करती हूँ। पता नहीं कैसा शोर आ रहा है। फैन चल रहा है ओनली। अजीब का शोर आ रहा है, पंखे का है, कूलर का। चलिए खैर, आपके यहाँ तो लाइट आ गई, मेरे यहाँ चली गई। अच्छा। अच्छा, चलिए तो अपन ट्रायल क्लास शुरू कर रहे हैं। ओके सर। ट्रायल, हाँ उसमें मैं आपको ये बताऊंगा, क्योंकि अब मैंने नाउ आई हैव जज्ड योर लेवल ऑफ स्पीकिंग। ठीक है, मुझे पता चल गया आप कैसा बोल सकते हो, आपको क्या नॉलेज है। अब उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी क्लास कैसे कैसे चलेगी। ओके सर। ठीक है, तो देखो, इंग्लिश सीखने के लिए शुड आई स्पीक इन इंग्लिश और हिंदी? इंग्लिश। You know, I tell you some of the important points that how one can learn English. इंग्लिश कैसे सीख सकता है वो मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, ये लोग निकल रहे हैं, इनको बोल दो एक बार बैठ जाए निकल के, फिर ओके। ठीक है। Hmm. Okay, so how we can learn English? Actually, I have already judged your level of speaking and how much grammar you know. I have come to know everything. And on that basis, I am going to customize a course for you. And in the beginning, we'll go for 15 lessons. Okay. In the beginning, we'll go for 15 lessons, but after that, we'll decide, we'll analyze that how much you have improved, and after that, we'll go further. ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, पहले 15 लेसन के लिए हम जाएंगे। तो अब जैसे you can understand English, I think, यस। but the problem is that you cannot speak. यही यस। है ना आपकी प्रॉब्लम? समझ समझ आई समझ समझ तो लेता हूँ, आधी समझता हूँ, फिर आधी जो ज्यादा फास्ट में बोलोगे फिर नहीं समझ पाता कि क्या हो गया। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, देखो अपने को ना शुरू से चलना पड़ेगा। बट वी आर नॉट गोइंग टू लर्न ग्रामर डीपली, वी प्रैक्टिस स्पीकिंग डायरेक्टली। ओके सर। ठीक है, तो जैसे मैं, कैन यू मेक शॉर्ट सेंटेंसेस?
Yes. इंग्लिश में क्या करना, हमको छोटे छोटे सेंटेंस बनाने। सपोज इफ आई आस्क यू टू स्पीक अबाउट यू, कैन यू स्पीक अबाउट यू? Yes, again. Then speak short sentences like my name is this, I am a student of this, I am from that town, I live in Agra, I work in that office, like this। ऐसे बोलो छोटे छोटे सेंटेंस। हाँ, स्पीक। अब बताइए सर। छोटे छोटे सेंटेंस बोल के जस्ट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एज आई टोल्ड यू, माय My नेम इज। हाँ my हाँ। name is Raghuvansh Pal. My father's name is Ramkumar Pal. My mother's name is Mithili. I have got one younger brother. I have done completed my graduation by S College of Engineering Management Agra. I belong देखो, to Agra. My village name is Baghupur. पहली बात तो आप एक चीज सुनो, आपने बोल तो दिया मगर रेलगाड़ी भगा दी। कौन सी वंदे Yes, भारत चला दी आपने, वंदे भारत, समझ रहे हैं आप? yes, तो वंदे भारत नहीं चलानी है अभी आपको। कौन सी चलानी है? पैसेंजर ट्रेन चलानी है, लेकिन आराम से बोलना है ना। अभी मत सोचो कि मैं सीधा चंद्रमा पे चढ़ जाऊं दौड़ के। ठीक है? अभी आपको छोटे छोटे सेंटेंस आराम से बोलने हैं। ठीक है? तो कैसे बोलोगे? माय नेम्स, तो माय नेम इज नहीं बोलते अपन, स्पीकिंग में क्या बोलेंगे? माय नेम्स। नेम्स मतलब नेम इज, तो माय नेम इज राघवेंद्र पाल, पर हम बोलेंगे माय नेम्स। लिखता हूं मैं यहाँ, ठीक है? ये देखिए, माय नेम्स राघवेंद्र पाल, आर कैपिटल बनेगा, वो स्मॉल लिख गया है वहां, ठीक है? तो माय नेम्स राघवेंद्र पाल, माय फादर्स नेम्स, जो भी है वो लिख बोलेंगे। माय फादर्स नेम्स दिस, आई एम फ्रॉम दिस, जो भी टाउन है ना। आई एम या आई लिव इन आगरा, आई एम अ ग्रेजुएट फ्रॉम जो भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज, आई एम अ ग्रेजुएट फ्रॉम दिस कॉलेज, आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई इंग्लिश, आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई इंग्लिश फॉर गेटिंग अ गुड जॉब। good job. I want to improve my English for getting job. अब पूरा फिर से बोलो। I want to improve my English for getting job. और Getting job. हाँ, फॉर गेटिंग अ गुड जॉब, है ना। अब फिर से बोलो पूरा, माय नेम्स राघवेंद्र, पूरा फिर से बोलिए, आराम से बोलना है। My name is Raghavendra. हाँ, My father's name is Ramkumar. My mother's name is Mithilesh Devi. I have got one younger brother. I वेरी live गुड। आई हैव गॉट बोला आपने, क्या बोला? I have got वेरी गुड। आई हैव गॉट, one younger brother. वन नहीं बोलेंगे, अ यंगर ब्रदर। A, अ, a younger brother. हाँ, आ मतलब ये A, वाला। A. हाँ, I from to Agra. आई एम, I belong to Agra. आई बिलोंग टू आगरा, ओके। Hmm. ओके, एंड आई वांट टू इम्प्रूव इंग्लिश फॉर गेटिंग अ गुड जॉब। For getting a good job. फिर से बोलो पूरा सेंटेंस।
I want to improve English for getting a job. Very चलिए ठीक। अभी एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, ठीक है? Okay. आर यू सीरियस टू लर्न इंग्लिश? Yes, I am serious in learning this. वेरी गुड, आई एम सीरियस टू लर्न। और सिंपल आप आंसर दे सकते हो। मैंने पूछा आर यू सीरियस टू लर्न इंग्लिश, आप कह सकते यस आई एम। क्या बोल सकते हो आप? यस आई एम, I am. है ना? यस आई एम। Yes. ओके, तो ये तो हो गई छोटी सी बात। अब अपन आपको बताते हैं, जैसे कि हम आपके लिए जो कोर्स कस्टमाइज करूंगा मैं, उसमें क्या रहेगा कि जो छोटे छोटे सेंटेंसेस से हम शुरुआत करेंगे। देखो, इंग्लिश बोल सीखने के लिए जरूरी है कि इंग्लिश को बोलना, और बोलोगे कब? जब आप सुनोगे। तो ज्यादा से ज्यादा सुनना, द मोर यू लिसन द बेटर यू कैन स्पीक। I speak every day 1 hour to 2 hours continue. हम्म, I speak every day 1 or 2 hours every day. ओके। And डू I यू lis- स्पीक, डू यू I स्पीक speak इंग्लिश? yeah, I speak every day English. And I listen English movies and English videos. Very good, very nice. So you watch English movies every day? Every day or English videos, short videos, moral stories English. Okay, so you want to improve. You are determined to speak, huh? Yes. I joined Agra coaching 2 months, but I can speak English fluently. When I speak English, so I am hesitate. Okay, you joined a coaching in Agra Yes, and you learned English there. there. You can speak, but you hesitate. देखो, आराम से बोलना है। देखो, फ्लुएंसी का मतलब ये नहीं होता आप किसी भी अंग्रेज को बोलो या आप नेचुरल हिंदी भी बोलते हो। सुन लो मेरी बात ध्यान से। Even if you speak Hindi, your mother tongue is Hindi, my mother Yes. tongue is Hindi too. But when we speak Hindi, we never speak very fast. हिंदी में हम ऐसे नहीं बोलते। अरे वैसा, कल मैं वहां गया था, वहां पे मैं शादी में अटेंड की मैंने, मेरे दोस्त मिल गए, फिर हम लोगों ने खाना खाया, खाना खा के हम लोग जल्दी से बाहर आ गए, गाड़ी पकड़ी और घर आ गए। ऐसे तो नहीं बोलते ना आप? बोलते हो? No, नहीं। हिंदी में भी हम ऐसे बोलते हैं। यार देखो, कल हम वहां गए थे शादी में, कुछ दोस्त मिल गए और वहां पे फिर हमने खाना खाया, बाहर आ गए गाड़ी लेके अपनी, और फिर हम लोग घर आ गए, सो गए। ऐसे Yes, ही you बोलते हो ना हिंदी में भी? yes, you are right, sir. और किसी भी, इवन इफ यू लिसन टू इंग्लिश, इफ यू वॉच इंग्लिश मूवीज, हैव यू एवर सीन द इंग्लिश पीपल दैट टॉकिंग वेरी फास्टली? No, देखा आपने क्या? दे स्पीक नेचुरल इंग्लिश। इंग्लिश में भी yes, sir. जो मूवीज में डायलॉग्स होते हैं, दस वेरी नेचुरल, राइट? तो आपको Yes, क्या है, नेचुरल स्पीकिंग करना है। डोंट ट्राई टू बी फास्ट। इफ यू ट्राई टू बी फास्ट, यू कैन नेवर बी अ गुड स्पीकर। yes, sir. Okay, so try to speak in a natural way as we speak Hindi. Okay, so what we are going Okay. to do in our lesson, that I am going to tell you. Suppose I tell you my daily routine today. You understand daily routine? Yes, I am telling you my daily routine. okay, sir. Listen to me carefully, and then you will speak your routine after listening to me. Okay, I am Subodh Maheshwari, and you know I have been a teacher for the last 33 years. I have been teaching English for the last 33 years, and I have been teaching English online for the last 13 years. Okay?
Yes, So sir. I get up in the morning at 4 o'clock. Okay, sir. I finish my nature calls. You understand nature calls? Yes. I finish my nature calls. I get ready and I take some exercise at my home. After that, I go out for jogging, running, and reverse walking. I come back after a walk. I have some rest. And I have some fruits. Okay. Okay. I have some fruits. After that, I take bath. And I have my lunch at 10. And then I take a nap just for 30 minutes. You understand nap? What? I take a nap. Nap. Yes. Nap means when you जबकि sleep. रहना मतलब आराम Uh, करना, मतलब आधा एक घंटा सोना. yes, very good, very good. You are right. Short sleep in daytime. Understand? Yes, yes. What's wrong with your internet connection? Hello? Hello? Hello. Hmm. Can you hear my voice? Yes, sir. Your voice is coming. Okay. I take a nap for 30 minutes. After that, I do some work on my computer. I make videos. I upload videos to my YouTube channel. I talk to my students and I take classes. I take classes from morning to evening. In the evening, I have my dinner. Okay. And I teach my students in evening. And at 9:30 or 10 o'clock, I go to bed. Okay. So this is my routine. Now you speak your routine. Okay. I am Raghavendra. Hmm. I am Raghavendra. I am a student. Hmm. I got up 5 o'clock, half past. Got up नहीं, get up. Got up तो past में हो जाएगा. हाँ, वो पास्ट ही बता रहा मैं. पास्ट नहीं बताना है. रूटीन डेली होता है, पास्ट में नहीं होता कि मैं कल उठा था. कल की बात थोड़ी कर रहे हम कि मैं कल उठा था. मैं आज मैं की इसलिए बात कर बोला रहा हूँ, जो रोज करते हैं उसकी बात कर रहा हूँ. मैं इसलिए बोला वो सुबह निकल गया ना, इसलिए पास्ट में बोल दिया. मुझे उससे मतलब नहीं, मेरे को आपका डेली रूटीन बोलना है. I get up early in the morning, half past 5. At 5:30. हाँ, okay. 5. After that, I go every day on the walking areas. I do exercise. Once again. I go to for walking. गो टू नहीं होता है, वही तो कह रहे हैं, इसीलिए आराम से बोलोगे. आई गो टू नहीं होता. गो टू तब होता है जब किसी स्थान को जाते हो आप. आई गो टू स्कूल. आई गो टू माई ऑफिस. समझ रहे हैं? आई गो टू माई फील्ड. आई गो टू माई शॉप. जब वॉक के लिए जाते हैं तो फॉर यूज होता है. आई गो फॉर ए वॉक. गो टू वॉक नहीं होता. आई गो फॉर ए वॉक. Okay. चलिए नेक्स्ट. हाँ, फिर I go for a walk on the field. After ऑन I ऑन speak. द फील्ड नहीं. ऑन द फील्ड नहीं. आई गो फॉर ए वॉक. सुन लीजिए, आई गो फॉर ए वॉक
इन द ग्राउंड, in the ground. ऑन After नहीं that, होता, ठीक है। हाँ, I speak English every day 1 hour. आई स्पीक इंग्लिश फॉर एन आवर। After that, I return at the home. I would take breakfast. आई वुड नहीं, आई I टेक। take I take breakfast. After that, I learned vocabs 30-40 vocabs. एवरी डे। After every day. After that, I take a shower. ओके, I take brush. After that, I take shower brush. After that, I go. I take आई breakfast. टेक शावर एंड व्हाट? Brush. आई ब्रश नहीं होता, आई टेक ब्रश नहीं होता। आई टेक शावर एंड ब्रश माय टीथ। And I return. After that, I sit on the. I work on the computer. I learned language coding on the laptop. वंस अगेन, I learned coding on the laptop. लर्न नहीं, लर्न। Learn LERN. After that, I would take lunch in the. वुड I नहीं लगाओ, वुड क्यों लगा रहे हो? I take lunch हाँ, in o'clock. After that, I would learn because after that I would go to evening time in the market. वुड 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 आपने बहुत ज्यादा रट लिया है, तो वो आपके हर सेंटेंस में आ रहा है। वुड तो कब आता है? वुड समझ लो पहले, ठीक Future है। में. सुन लो, सुन लो, देखिए, वुड इज अ मॉडल and it has lot of uses that I am not going to speak in detail, but try to understand the use of wood. You know, there is a use in the past, like we say, I used to play cricket in my childhood. Childhood. हम बोलते हैं ना, I used to play cricket in my childhood. It Yes. means I was in the habit of doing something in the past for a long time. Okay. जब लंबे समय तक हमारी कोई आदत थी कुछ काम करने की, तब हम बोलते हैं आई यूज टू डू दैट, आई यूज टू प्ले क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड, ठीक। लेकिन जब कोई आदत पास्ट की आपकी थोड़े समय के लिए थी, सुनना समझना ध्यान से, ये तो हो गया आई यूज टू स्पीक, आई यूज टू, या जैसे आप किसी दोस्त से मिले, यार वी यूज टू बी फ्रेंड्स इन आवर चाइल्डहुड, बचपन में हम लोग दोस्त हुआ करते थे, वी यूज टू बी फ्रेंड्स। In the childhood. लेकिन वुड कहाँ आएगा? यूज टू को रिप्लेस करते हैं वुड से। Good say yes sir. कब करते हैं? जब आदत हमारी थोड़े समय के लिए थी। जैसे एग्जाम्पल से आप समझ जाओगे, आई वुड टेक, अब मैं यूज कर रहा हूं, आई वुड टेक मेडिसिन इन माई चाइल्डहुड वेन एवर आई फेल सिक। क्लियर हुआ आपको सेंटेंस? बचपन में मैं दवाई लेता था जब जब मैं बीमार होता था, तो थोड़े समय के लिए होता था बीमार, तब वहां पे फिर यूज टू नहीं वुड यूज करेंगे, है ना। आई would take medicines in my childhood whenever I fell sick. Fell sick मतलब बीमार पड़ना, पास्ट में हो गया, तो वहां पे would का यूज होगा, ठीक है। और कहाँ होता है would का यूज? आपको पता है, टू मेक अ रिक्वेस्ट। Request में. चलो आप पूरा would ही समझा देता हूँ आप, ठीक है। आपको शायद मजा भी आ रहा है सुनने में। यू आर इंटरेस्टेड टू लर्न, ये अच्छी बात है। यू आर courageous to learn English. You are desirous to learn English. That's good. If you have that spirit and that feeling, nobody can prevent you from learning English. समझ गया मैंने जो बोला? क्या बोला मैंने? क्या सर? क्या बोला मैंने? क्या समझे आप? You are interested in English. Good में. नहीं नहीं, मैं उसके बाद कुछ बोला, आपने सुना नहीं शायद ध्यान से।
मैंने ये बोला कि आपके अंदर स्पिरिट है, सीखने की भावना है, और जब सीखने की भावना है तो कोई आपको रोक नहीं सकता सीखने से। ये बोला मैं। सॉरी ठीक सर, है। आई हम्म। अब वुड का यूज होता है टू मेक अ रिक्वेस्ट। यस इट्स अ पोलाइट रिक्वेस्ट, लाइक वुड यू हेल्प मी प्लीज। यस बोलते हैं ना, वुड यू प्लीज हेल्प मी, यस वुड यू लैंड मी सम मनी। यस। क्या मतलब हुआ इसका, वुड यू लैंड मी सम मनी प्लीज। क्या कोई मुझे रुपये उधार दोगे? हाँ, यस। तो वुड का यूज टू मेक अ रिक्वेस्ट, ठीक है। और थर्ड यूज क्या है वुड का, एक वीडियो देख लेना, मेरा लिंक भेज दूंगा वुड के बारे में, ठीक है। फ्यूचर में। हाँ, देखने वो बाद में करेंगे, पहले थर्ड यूज करो पहले। थर्ड यूज है जैसे व्हेन यू आर आस्किंग समवन, और जैसे कोई आपके घर आया, सपोज यू आर वेलकमिंग अ गेस्ट इन योर होम, एंड यू आर होस्ट, एंड somebody is a guest in your home, that time we always ask like your mama ji is there, अच्छा वो what। हाँ, तो हॉस्पिटलिटी क्या के रूप में, हाँ, हॉस्पिटलिटी के रूप में, हॉस्पिटैलिटी, क्या बोलते हैं, हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटलिटी के रूप में। वुड यू हाँ, लाइक टू टेक जैसे टी? हम पूछते हैं वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, वुड तो यू वुड लाइक टू टेक लाइक, वुड पास्ता? लाइक, हाँ तो वुड लाइक बोलते हैं, ठीक है। वुड लाइक टू यू टी या समोसा? हाँ, वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव। तो उन्होंने बोला अ कप ऑफ टी विल डू। जैसे कोई बोलता है ना, चलेगी, चाय चलेगी। एक कप चाय तो चलेगी, एक गिलास हाँ, चलेगा। हाँ तो क्या बोलते हैं, अ कप ऑफ टी विल आ डू। कप ठीक है। तो ये हो गया वुड का यूज। अब और क्या होता है वुड का यूज, देखो एक वुड का यूज बताता हूँ आप। एक इफ में होता का, इफ मैं ये कर लेता वो होता। बता रहा हूँ, सुनो। तो ये बता दिए मैंने, यूज टू की जगह रिप्लेस कर सकते हो, यस बता दिया। टू मेक अ रिक्वेस्ट, यस और व्हेन यू वेलकम समवन, यस तब हम पूछते हैं वुड लाइक, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव। या हम कई बार ऐसे भी बोलते हैं वुड लाइक, करना पसंद करूंगा। जैसे हम, आई वुड लाइक टू स्लीप नाउ, नाउ। अब मैं सोना पसंद करूंगा, आई वुड लाइक टू स्लीप नाउ, आई वुड लाइक टू गो टू बेड नाउ। ओके। चलिए, नेक्स्ट यूज होता है वुड का इन कंडीशनल सेंटेंसेस, इन पास्ट, पास्ट कंडीशनल सेंटेंसेस में होता है, लाइक जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। अगर आप मुझसे मिले होते, अगर आप पहले मुझसे मिले होते, तो अभी तक आप अंग्रेजी सीख गए होते। ठीक है। दिस इज पास्ट कंडीशन, इफ यू हैड कम टू मी अर्लियर। जो पहला सेंटेंस है वो किस में बनाते हैं, पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। इफ यू हैड कम टू मी अर्लियर, तो वुड हैव V3 से बनेगा, ठीक है। यू वुड हैव लर्नड इंग्लिश बाय नाउ, तो अब तक सीख गए हो। कंप्लीट सेंटेंस क्या बन गया, इफ यू हैड कम टू मी अर्लियर, यू वुड हैव लर्नड यू वुड हैव इंग्लिश टू बाय लर्न नाउ। इंग्लिश। ठीक है। तो ये होता है। और क्या होता है वुड का, देखो, some of these conditional sentences they are never true, कभी सच नहीं होते। These sentences may be in past, future or present, but they are never true. ऐसे कंडीशनल सेंटेंस जो कभी सच नहीं होते। जैसे अगर मैं बोलूं, अगर इस कमरे में शेर आ जाए तो सब भाग जाएंगे। कंडीशन है ना, शेर आ जाए तो सब भाग जाएंगे। मगर सच नहीं हो सकता ना, ये हो सकता है क्या सच। नहीं। हाँ, तो इस प्रकार के सेंटेंस, फर्स्ट सेंटेंस इज ऑलवेज पास्ट इंडेफिनिट, सेकंड वन इज इन सब्जेक्ट वुड बी वन। If a lion came into this room, all would flee.
लिखूं क्या यहाँ पे? नहीं जाएंगे। हाँ? If a lion came into this room, all would flee. ठीक है? ओके सर। One more request in word. This is most polite request in English. मैं लिखता हूँ यहाँ पे। माइंड पढ़ाया आपने? माइंड, क्या सर? would you mind? कुड यू? यस। मैं लिख रहा हूँ फिर समझाऊंगा। Did you see? देखा आपने? यस यस। Would you mind passing me the salt please? इसका मतलब क्या? सॉल्ट भी। इसका क्या मतलब मुझे क्या? नमक पास करोगे? हाँ, क्या वेरी। मुझे नमक पास करोगे? तो कब बोलोगे ये? जब टेबल पे बहुत सारे लोग खाना खा रहे हैं। जब नमक आपसे दूर है, आपको नमक चाहिए। चाहिए तो आप किसी से बोलोगे। हाँ, तो वुड यू माइंड प्लस B4 ING वाला, ये सबसे पोलाइट रिक्वेस्ट होती है। तो वुड यू माइंड और ING वाला फॉर्म। जैसे किसी से बोलना है, आप लेटे हो and you want your younger brother to switch on the fan. आप चाहते हो आपका भाई पंखा चला दे। You are lying down but you are feeling hot and you want your younger brother to switch on the fan. Then you have to be very, very polite. How? Would you mind switching on the fan, please? है ना? इस तरीके से पूछ। तो would का यूज तो बताना नहीं था मुझे अभी, पर चलो बता दिया, बात चली इसलिए, क्योंकि आप would का यूज कर रहे थे बार बार। चलिए, तो वो टॉपिक था आपका। हाँ, तो would यूज नहीं करिए यहाँ पे, है ना, ये गलत हो जाएगा। फिर आप खाना खाते हो, हाँ, यू हैव लंच एंड देन I I take lunch. After that, I sit again on the laptop. I work on the laptop. After that, I go to on the choraya. I played cricket every day. प्ले क्रिकेट। Evening time. After I go to walk evening time. I walks फिर for फोटो। I go for walks. हाँ, I go for walks evening times and I speak और English. आप देखो, आराम, एक्सेंट नहीं सुधारोगे ना आप अपना, कितनी अच्छी अंग्रेजी बोल लो, कोई मतलब नहीं। एक्सेंट शुड बी नाइस। आराम से बोलना है भाई, उससे दोस्ती करना है, लड़ाई थोड़ी करना है। जल्दी जल्दी नहीं बोलो, आराम से बोलो। देखो, आई गो फॉर ए वॉक, मजा आना चाहिए सुनने वाले को। ऐसा नहीं लगे कि जल्दी जल्दी फेंक रहा, ले पकड़ इंग्लिश, ले पकड़, ले पकड़, ले पकड़, ये नहीं। उसको मजा आया आपको सुनने में, क्या अंग्रेजी बोली, मजा आ गया, धन्य हो गया मैं आज। तो ये सोचे तो मात है। आराम से बोलो, आई गो फॉर ए वॉक अगेन, है ना, again बोलो। evening हाँ, times. हाँ। After I listen English videos यू and लिसन इंग्लिश I न्यूज। listen English videos and English news. Yeah. After that, I saw English movies. सो नहीं, I see. आई वॉच। I watch English सौ movie तो हो गया, देखा मैंने 2 साल I पहले। I watch English movie और and सौ नहीं बोलते मूवी देखने के लिए, क्या बोलते हैं? वॉच। watch I क्यों? watch देखो, हाँ, समझ लो। देखो क्या होता है, मूवी को क्या करते हैं हम, स्पेशली बैठते हैं फिर देखते हैं ऐसे, है ना, yes. इसलिए वॉच आएगा वहां पे। और सी का मतलब होता है जो कोई चीज दिख जाए। जैसे आई Simple. वॉज गोइंग, जैसे मैंने बोला आई वॉज गोइंग ऑन द रोड,
and I saw a lion there. तो मुझे वहां एक शेर दिखा। I saw a lion. तो वो तो दिख गया आपको। आप देखने थोड़ी गए थे लायन को बिठा के कि इसको देखूंगा मैं ऐसे। Yes. तो कोई चीज दिख गई तो वो होती है सी। लेकिन जो कोई स्पेशली किसी चीज को देख रहे हो तो फिल्म के लिए आएगा आई वॉच But मूवीज एवरी डे। ठीक है, नेक्स्ट। I watch English news. ओके। After, after I take dinner evening time. Evening. हम्म। After that I slept 10 or 11 o'clock. अब स्लीप की जगह अपन क्या बोलते हैं? Siesta. आई गो टू बेड। ऐसे डायरेक्ट स्लीप नहीं बोलते। आई स्लीप एट। ठीक है, चलेगा, लेकिन अच्छा क्या है? आई गो टू बेड। Okay, sir. आई गो टू बेड एट 10 PM। ऐसे बोलो। ठीक है ना? सीख जाओगे, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, आपके अंदर लगन है। यू कैन लर्न, नो प्रॉब्लम, बट यू विल टेक सम टाइम। बट यू शुड गो फॉर 15 लेसन्स इन द बिगनिंग। तो मैंने आपको एक कोशिश की, बता दिया कि हम एक कस्टमाइज करेंगे एक कोर्स आपके लिए। And in the beginning, we'll begin with small topics, short topics, and after that we go for long topics. तो long topics भी बहुत बड़े बड़े हो सकते हैं। जैसे लाइक हमने किसी टॉपिक के बारे में बोला मॉर्निंग टाइम। तो मैंने बोला सपोज मॉर्निंग टाइम फ्रॉम 4 to 7 इज अ वेरी नाइस टाइम, इट्स गुड फॉर students get up in the Yeah. morning, they want to study their books, so whatever they study in the morning they can keep it in their mind for a long long time. Housewives, they get up in the morning to finish their domestic work, and some of the people, they get up in the morning, they take care of their health, they want to be fit and healthy in the rest of their life, so they go for a walk, they do yoga, jogging and all. And some of the people, they don't get up in the morning because they want to sleep in the morning, because they have some sleep in the morning, and they come back their home very late as they work in cinema, hospitals, press and all. अब ये बड़ा टॉपिक हो गया। अब इसको आपने सुन लिया, अब इसको बोलोगे आप, रिपीट करो, उसको जाओगे आप अभी कुछ क्लासेस के बाद, एकदम अभी नहीं बोल पाओगे आप। तो इस तरीके से टॉपिक्स जाएंगे, देन वील हैव डिफरेंट टॉपिक्स फॉर द कन्वर्सेशन एंड डिस्कशन, and like that we'll go ahead, and during our learning or during our class, if we have any problem, then we'll discuss about that deeply, like जैसे वुड के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो ऐसे कुछ जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी, या if you want to ask me anything in grammar, you can ask me। फिर हम आपको एक चीज और बोलेंगे, if you watch English movies it's okay, but I would like you to watch, uh, if you watch Hindi serial or Hindi program, then take out some dialogues from them। जैसे कभी कभी कोई सीरियल पिक्चर में डायलॉग होता है ना, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तो I will उसको, not leave you. हाँ। I will not leave you. हाँ, लेकिन इसमें पूरा नहीं है सेंटेंस, या आपने बोला जो आई विल नॉट लीव यू, तो इसको पहले तो शॉर्ट में बोलेंगे हम क्या, आई वॉन्ट। आई वॉन्ट लीव यू स्पेयर। जब किसी को वैसे करें, तेरे को छोड़ूंगा नहीं मैं, आई वॉन्ट लीव यू स्पेयर। कई बार हम बोलते हैं, मैं तुझे देख लूंगा। तो देख लूंगा मैं क्या करोगे आप, कैसे बनाओगे? I will see you. अब ये होता है आई विल सी यू, तो मैं मिलूंगा आपसे, आपसे मिलूंगा। लेकिन यहाँ तो तेरे को देख लूंगा।
तेरे को देख लूंगा, तो वहां पे क्या बोलते हैं, आई विल डील विद यू। समझ में आया? आई डील विद यू, मैं तुझे देख लूंगा। आई विल डील विद यू डेफिनेटली, मैं तुझे जरूर देखूंगा। ठीक है। तो इस तरीके से चीजें हैं, तो आप अगर करोगे कंटिन्यू तो सीखते जाओगे, सीधी सी बात। नहीं तो एवरीबडी इज एंजॉयिंग हिज और हर लाइफ, दे आर इन देयर कंफर्ट जोन, you are also in your comfort zone, I am also in my comfort zone. Why we should take pain? Most of the people, they think that why they should take pain, their life is going on smoothly, they don't need to take any pain. But still, you see, I am 59-year-old, but still I learn new things every day. Not in English, in other fields also. I am learning Chat GPT. I am learning affiliate marketing. Lot of things I am learning, and I spend money for the courses. Few days back, 2 3 days back, I have joined a course that is from US, and I have paid 50,000 for it. 50,000 दिए मैंने उस कोर्स के। तो क्या है, it is our choice what we want to do in our life. But education is very important for everyone. You are And right, you sir. should actually, when you spend money for getting education, you are not spending money, you are investing money for Yes. your education. Education. Education is, worthless, priceless, but it can change your life. So if you get, or if you have an opportunity to gain some knowledge about anything, you should go for it. So I think everything must be very clear to you that how we would go in our classes. In the beginning, you should go for 15 lessons. और मैं आपको फीस बता दूंगा अब आपको। Yes, yes, sir. 15 डेज की फीस मेरी वैसे तो 7,500 है। इसमें क्या रहता है, आई टेल यू, अ क्लास इज फॉर 50 मिनट्स, एक क्लास 50 मिनट की होगी। 50 मिनट्स, द ड्यूरेशन फॉर द लेसन इज 50 मिनट्स, 50 मिनट की एक क्लास रहेगी। हो जाएगा? हम्म। हो जाएगी कि बोलने लगूंगा 15 दिन में क्लियर? क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, but don't ask me that question, you ask that question yourself. Yes, I am trying daily. What do you think, you will be able to speak English or not after joining? अभी एक ट्रायल क्लास लिया आपने मेरे से, ठीक, अभी ले लिया आपने, and now what do you think about this? After having a class with me, what's your opinion? What do you think? Are you going to learn, or have you learned anything in this class? Yes, आपने कुछ सीखा इसमें? yes. क्या सीखा? जो भी आया, जस्ट टेल मी Yes. क्लियरली। गो के बाद फोर लगाना चाहिए। हम्म। अगर वॉकिंग करने जाओ तो गो के बाद फोर लगाना है। हम्म। वो तो और छोटी छोटी चीजें, वो तो सीख ही ली आपने, वो कोई दैट डजेंट मैटर। मेन मुद्दे की बात क्या सीखी आपने? इंग्लिश बोलना है एवरीडे। इंग्लिश बोलना। एवरीडे है। हाँ वो तो ठीक है, चलो ये तो हो गया, मगर आपको क्या मीन्स, व्हाट फीलिंग डू यू हैव आफ्टर दैट क्लास टुडे? अभी क्या आपके मन में विचार आ रहा है, वो बताओ। ये क्या सीखा, वो तो सीखोगे ही, वो तो कन्फर्म है। अभी विचार क्या आ रहा है आपके मन में? बस मेरा एक लाइक मुझे इंग्लिश आनी चाहिए फास्टली कैसे भी। आई एम आनी रेडी। तो चाहिए, लेकिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? मतलब आपको क्या लग रहा है? मैं तो कहूंगा आ जाएगी। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है सर। देखो मैं तो टीचर हूँ, मैं तो बोलूंगा आ जाएगी, यस। पर आपको क्या लग रहा है?
मैं सीखूंगा, अपना अपना बेहतर दूंगा। हाँ हाँ, तो अपना बेहतर दूंगा, आई विल डू माई बेस्ट। आई विल डू बेटर, आई विल गिव बेटर, बेटर नहीं, आई विल डू माई बेस्ट। आई विल डू माई बेस्ट। तो हमेशा हम क्या बोलते हैं, आई विल डू माई बेस्ट। मैं अपना अच्छा करूंगा, जो मैं कर सकता हूँ, व्हाट आई कैन। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी एक बात। आपका प्रश्न था क्या मैं सीख जाऊंगा। देखो, आपने बहुत कुछ सीखा है, आपने कोशिश की है। आई नो दैट यू कम फ्रॉम अ विलेज बैकग्राउंड, आई नो दैट you come from a village background, but still you have learned a lot, and I think you couldn't learn much in your village. गांव में तो कुछ ज्यादा सीख नहीं पाए होगे आप, but you have tried. Now you are trying to speak, you are watching movies, and you are trying to speak English yourself. That's good. So if you can learn all these things yourself, and if you try to learn English with some mentor or guide like me, don't you think you are going to improve a lot? आपको नहीं लगता कि आप और अच्छे से कर पाओगे? यस। किसी मेंटर के साथ, किसी गाइड के साथ आप करोगे प्रैक्टिस, तो ज्यादा अच्छे से वो आपकी कमियां बता के दूर करता जाएगा। जैसे मैंने बताई आपको कि आपको रूटीन जो बोलना है तो उसमें वुड नहीं लगाना है, लेकिन अगर कोई मेंटर नहीं हुआ तो आप लगाते रहोगे वुड। जब तक मेंटर नहीं है, इफ यू डोंट हैव अ मेंटर टू गाइड यू, you cannot improve. Chances are very rare to improve. लेकिन जब एक गाइड होता है, आपका टीचर होता है, वो आपको बताता है कि ऐसे नहीं ऐसे करना है, तो इम्प्रूव होता जाएगा। और फिर मेन चीज क्या है, इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितने, हाउ मच स्पिरिट यू हैव टू लर्न। वो आपके अंदर है, आपके अंदर आग तो जल रही है, लेकिन उस आग को और भड़काना है नहीं। आग तो यस। जल रही है, धीरे 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 अंग्रेजी की आग लगी है, सीखना 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 है। तो वो सीखोगे कब, जब प्रॉपर गाइडेंस होगा, तो सीख जाओगे दोस्त, कोई बात नहीं है। इट्स नॉट अ बिग टास्क, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। और देखो, जो मैं बोलता हूँ उसको ध्यान से सुना करो, पकड़ा करो उसको। अगर उसको पकड़ लिए ना आप, तो ही सीख जाओगे। अगर यही पकड़ लिए आप तो उससे ही सीख जाओगे, तो सीख जाओगे। 15 क्लास के लिए जाएंगे हम, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे आफ्टर 15 days। इफ यू नीड सम मोर, तो घबराना नहीं है कि यार देखो इतने पैसे तो चले गए और सर कह रहे और कर लो। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप खुद ही बोलोगे फिर। क्योंकि देखो यार, नॉलेज है, एक बार अगर आपने ये कर ली, योर सक्सेस डिपेंड्स ऑन दैट। If you see, if I am using the courses from foreign countries, but all the courses are in English only. If I have, or if I can understand good English, I can join these courses and I can learn from them. But the Hindi speaking people, they can't learn all these things from them. तो ये base है, this is the base to learn anything. तो कर लोगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। वो करना क्या है उसमें, सुनो आप मुद्दे की बात। जो मैं आपसे बोलूं बस वही करते जाना है। आपको अपना दिमाग नहीं लगाना मैं क्या करूं, आज ये बताया तो अब क्या करूं मैं। यू डोंट नीड टू यूज योर ब्रेन, यू जस्ट हैव टू फॉलो मी। इफ आई आस्क यू टू राइट क्वेश्चंस, 25 questions every day, then you have to write 25 questions. If I ask you to watch Hindi movie, to write some dialogues, do it for 10 minutes or 15 minutes.
भाई यही तो आप पूरा दिन कर रहे हो ना, कभी मूवी देख रहे हो, कभी बोल रहे हो, अब मैं जो बोलूंगा वो करना है आपको बस। फिर देखो आप इम्प्रूवमेंट। अभी आप अपने मन से कर रहे हो, ये करूं वो करूं वो करूं, फिर मैं बताऊंगा वैसे करोगे तो इम्प्रूवमेंट आना ही आना। आपको अपना ब्रेन नहीं लगाना कि क्या करूं। हाँ, मैंने जो बताया वो करने के बाद आप फिर कुछ भी करो, और पढ़ना और पढ़ो, बट व्हाट आई आस्क यू टू डू, इट इज टू बी डन। वो आपको करना जरूरी है, ये है मुद्दे की बात। आप सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, और कुछ पूछना है आपको? ओके सर। तो आपको कब से ज्वाइन करना है फिर? अब टुमारो। कल से करना चाह रहे हैं आप? पक्का श्योर? तो ठीक है, आप फीस जमा कर सकते हैं, यूपीआई नंबर आपके पास मेरे आपका है ही। और जैसे ही आप फीस जमा करेंगे तो फिर हम क्लास का टाइम डिसाइड कर लेंगे। फिर कल से आपकी क्लास चालू कर देते हैं। तो किस टाइम ले सकते हो आप क्लास? इवनिंग टाइम। इवनिंग में मेरे बहुत क्लासेस हैं, अगर नून में लो तो बहुत बढ़िया है। मॉर्निंग। अब 5 बजे से मेरे 9-10 बजे तक क्लासेस ही हैं लगातार। या तो नून में ले लो, ओके। ये टाइम कैसा है 1 बजे का? हाँ हाँ, राइट। ये चलो देख लेंगे इवनिंग में, फिर ऑल्टरनेट में जो गैप होगा ना वहां पे ले लेंगे। देख लेंगे, कोई इशू नहीं है, वो डिसाइड कर लेंगे अपन, इट्स नॉट अ बिग थिंग। फिर वो मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा कि मंडे को, वेंसडे को, दिन तो देख लेंगे, है ना? व्हेन यू आर फ्री एक्चुअली, आप फ्री कब रहते हो? नाउ आई एम फ्री इन आई विल 1 month for 15 days। यू आर बिजी इन मॉर्निंग? नहीं, अभी तो आई एम फ्री है 15 days। अब अपना काम के पीछे कर लूंगा। अच्छा, चलो ठीक है, अच्छा लगा आपसे मिलके। आई एम हैप्पी टू सी यू, थैंक यू। क्योंकि आई डोंट सी मैनी पीपल लाइक यू, who are from village background but still they want to improve। आपके अंदर लगन है, ये अच्छी बात है, और यही लगन आपको सिखा देगी। कि जिसको कहते हैं ना, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। जो मगन हो गया उसको कौन रोक सकता है? उसको भगवान भी नहीं रोक सकते, है ना? चलो, तो आप ये पेमेंट करके मेरे को स्क्रीनशॉट भेजिए, और फिर हम एक बार फिर आएंगे 5 मिनट के लिए जूम पर, टाइम डिसाइड करने कल का। ठीक है, ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग। थैंक यू सर। थैंक यू, वेलकम।